پھر ایک دفعہ پھر آپ سبوں کو میری طرف سے سلام. سلام جی. آمین. ہاللویا. آج ہم اپنی برکت کے تعلق سے سیکھیں گے. آمین آمین. برکت ہم کس سے پاتے ہیں؟ خدا سے برکت پاتے ہیں، یسوع مسیح سے برکت پاتے ہیں. تو آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے. برکت کا منبع یسوع، شفا کا منبع یسوع. آج ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے تاکہ جب لوگ یا خدام یا ایسے لوگ جو ہمیں ڈراتے یا پھر جب ہم انہیں کم ہدیہ دیں تو وہ ہمیں ساڑھے ترا گھٹ دینے. مطلب آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ کیسا ہدیہ ہونا چاہیے اور کیسے برکت لینی چاہیے. آمین. آئے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے نکالیں حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 34واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے. لکھا ہے، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا. کیا کلام نازل ہوا؟ کہ اے آدم زاد، اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر، نبوت کر اور ان سے کہہ، خدا چرواہوں کو یوں فرماتا ہے. اب خدا کا کلام نازل ہوا خدا کے بندہ پر، اور یہ کلام بالخصوص چرواہوں کے لیے ہے. آمین. خدا کا کلام کن کے لیے ہے؟ چرواہوں کے لیے ہے. خدا چرواہوں سے مخاطب ہے، کہتا ہے چرواہوں کو یوں فرما کہ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس جو اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں. جو اپنا ہی کیا کرتے ہیں؟ پیٹ بھرتے ہیں. کیا چرواہوں کو مناسب نہیں کہ بھیڑوں کو چرائیں؟ کیا انہیں یہ مناسب نہیں کہ وہ چوپان ہو، وہ بھیڑوں کو چرانے والے ہو، وہ نگہبان ٹھہرے؟ خدا نے جو ان کے کام سپرد کیا ہے، نگہبانی کا کام، بھیڑے چرانے کا کام، اس کو کریں. کیا یہ ممکن نہیں؟ بائبل میں لکھا ہے بھیڑے کو چرائیں. تم چکنائی کھاتے اور اون پہنتے اور جو فربا ہیں ان کو ذبح کرتے ہو، لیکن گلہ نہیں چراتے. تم کیا کرتے ہو؟ خوراکیں اچھی کھاتے ہو، کپڑے اچھے پہنتے ہو، اور جو اچھا ہے وہ لینا چاہتے اس کو ذبح کرتے ہو، لیکن گلہ نہیں چراتے. اللہ کی نگہبانی نہیں کرتے. تم نے کمزوروں کو توانائی اور بیماروں کو شفا نہیں دی، اور ٹوٹے ہوئے کو نہیں باندھا، اور وہ جو نکال دیے گئے ان کو واپس نہیں لائے، اور گمشدہ کی تلاش نہیں کی، بلکہ زبردستی اور سختی سے ان پر حکومت کی، اور وہ تتر بتر ہو گئے کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا، اور وہ پرگندہ ہو کر میدان کے سب درندوں کی خوراک ہوئے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی کثرت کی برکت. آمین. آج یہ پیغام میں نے کسی وجہ سے چوز کیا. جب مجھے آپ لوگوں نے اندر بتایا کہ پادری نے پادے بڑے ترا کڈے نے، تو میں کیا کیوں نہ ہم اس بارے میں سیکھیں. بائبل میں ہدیے کا تعلق ہماری برکت سے ہے. آمین آمین. لیکن کس ہدیے کا تعلق ہماری برکت سے ہے؟ کون سا ہدیہ خدا کی خوشنودی ٹھہرتا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے خدا کن کو عزیز رکھتا ہے؟ خوشی سے. کہ اگر میں ڈرا کے کٹاواں، اگر میں تمکا کے ہدیہ کٹاواں، تسی ہدیہ دے دو تو انج ہو جائے گا، چندہ دو گے انج ہو جائے گا، انج ہو جائے گا، تو کیا وہ آپ کے لیے یا میرے لیے بابرکت ہدیہ ٹھہرے گا؟ نہیں. وہ تو ہم تنگ دلی سے دے رہے ہیں، وہ تو ہم باتیں سن کر ایک موٹیویشن کے تھرو وہ ہدیہ دے رہے ہیں، لیکن جب خدا دلوں میں ڈالتا ہے تو یاد رکھیں پھر ہدیے نہیں آتے. بائبل میں لکھا ہے جب منادی کا کام شروع ہوا
तो लोग अपने खेतों को, अपने घरों को, अपनी जायदाद को बेच कर उसका रुपया पैसा लाकर क्या करने लगे? रसूलों के पांव में रखने लगे, उनके कदमों में रखने लगे। उसकी वजह क्या थी? वो हदिया नहीं मांग रहे थे, वो हदिये के पीछे नहीं भाग रहे थे, वो रूहों के पीछे भाग रहे थे। उनकी तलाश रूहें थी और हदिये के लिए दिलों को तैयार करने वाला खुदा था। खुदा को मालूम था रुपए पैसे की जरूरत है। आज बहुत से खुदाम अपनी जरूरतों के लिए निकलते हैं, अपने मसाइल के हल के लिए निकलते हैं। वो इसलिए ज्यादा विजिट करते, इसलिए ज्यादा भाग दौड़ करते, इसलिए ज्यादा डराते हैं क्योंकि उनका खुदा उनका पेट है। हमने यहां पर पढ़ा लिखा है, चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं। जो अपना ही क्या करते हैं? पेट भरते हैं। अब इन ऐसे चरवाहों पर खुदा अफसोस कर रहा है। क्या आपने मुझे हदिया नहीं दिया, आपको बरकत नहीं मिलेगी। आप बरकत से महरूम हो गए हैं, आपकी बरकत रुक गई है। अगले ने पैसे ला छड़े, तुझे तरा कट्टी होंगे। भाई बरकत इन पैसों में नहीं है, बरकत उसकी ताबेदारी में है। और हदिये के लिए दिल तैयार खुदा करता है, कलाम करता है, पादरी नहीं। और जब खुदा दिलों को तैयार करता है, जरूरत से ज्यादा निकल आता है। आमीन। फिर क्या होता है? बाइबल में लिखा है, बड़ी दफा हम पढ़ते हैं कि जब खुदा के घर के लिए कॉल की गई, लोग अपना सोना चांदी कसरत से ले आए कि ये लो जी, सारा कुछ उन्होंने दे दिया जी, बनाओ खुदा का घर। आमीन। कैसे वो दिल तैयार हुए? खुदा के लिए किया जा रहा था। तो जब हम खुदा के लिए नहीं करते, हम अपने लिए करते हैं, खुदा के लिए नहीं कर रहे होते, तो फिर हमें बताना पड़ता है, फिर हमें सिखाना पड़ता है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। हमारा चर्च तमीर हुए 8 माह हो गए। साबर भाई ऐसे ही 8 माह में मैंने एक दफा हदिये पे मैसेज दिया। 8 महीनों में एक दफा, क्योंकि मैंने अक्सर चर्चिस में देखा है कि हर वक्त हदिया हदिया दया की। मैं ईमान रखता हूं अगर मैं कलाम सिखाऊंगा, मैं ईमान रखता हूं अगर मैं कलाम की प्योर तालीम दूंगा, मैं ईमान रखता हूं अगर इस कलाम से लोग बेहतर तरीके से मुस्तफीद होंगे, आसमान खुल जाएगा, दिल खुल जाएंगे, फिर खुदा कसरत से इन्हीं लोगों में से मुहैया कर देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर मेरी नजर कलाम पर नहीं, अगर मेरी नजर कलीसिया पर नहीं, अपनी जरूरियात पर होगी, तो फिर मैं कलाम भी अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर अपनी जरूरतों के मुताबिक सिखाऊंगा कि पैसा दोगे। और आज के खुदाम ने इस संडे मैं एक मैसेज दे रहा था, मैंने एक मैसेज सुना यूट्यूब पर। एक खादिम है, वो कह रहा है कि हदिये का ताल्लुक बरकत से नहीं है, गोरा है। वो कह रहा है कि एक हदिये का ताल्लुक किससे नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है हदिये का ताल्लुक किससे है? बरकत से है। अब ये बात बेसिकली मैं ये समझता हूं कि ये कोई उसने बहुत बड़ी गलती नहीं की, बल्कि इस बात को ऐसा खुदाम ने बना दिया है। खादिम जिनका पेट खुदा, जो अपनी जरूरियात के लिए भाग दौड़ करते हैं, जिनका ताल्लुक कलाम से नहीं, मुनादी से नहीं, जो पैसे के लिए सब कुछ करते हैं, फिर जब वो पैसे के लिए करते हैं तो फिर सुनाएंगे भी कलाम उस तरह का, ठीक है, फिर वो आपको डराएंगे, आपने जो कुछ भी किया, फिर वो आपको यही कहेंगे कि आप बरकत नहीं हासिल कर सके, आपकी बरकत रुक गई है, आपके साथ हुआ ही ऐसा इसलिए। भाई जो कुछ हो रहा है वो खुदा की रजा से है। आमीन। ओके। जिंदगी और मौत किसकी वजह से, किसके हाथों में है? खुदा के हाथों में। ऐसा तो मुमकिन नहीं कि मैं चंदा नहीं देता था बंदा मार जे। मतलब अजीब किस्म के। ये बात क्या है? ताकि मैंने डराऊं, ताकि मुझे क्या दें?
चंदा ज्यादा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमने बाइबल में से पढ़ा, खुदा कहता है ऐसे चरवाहों पर अफसोस, इन्होंने भेड़ों को चराया नहीं, बल्कि इनकी वजह से भेड़ें तितर बितर हो गई हैं। आज आप हर दूसरे बंदे से बात सुनेंगे, हर दूसरा बंदा हदिये पे बात करता है, हर दूसरा बंदा पास्टर्स के खिलाफ बात करता है, और उसकी वजह क्योंकि ये भेड़ों को कलाम नहीं खिलाते, ये प्रॉपर पासबानी नहीं करते, ये प्रॉपर चराते नहीं है, जिस वजह से भेड़े तितर बितर हो चुकी है, भटक चुकी है। ये वो रीजंस हैं, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो थोड़े पैसे इकट्ठे करने के लिए खुदा ने क्रिएट कर दी हैं, कलाम ने नहीं। ये प्रॉब्लम्स किन्होंने क्रिएट की हैं? खुदाम ने, कलाम ने नहीं। कलाम तो रखवाला है, कलाम तो मुहाफिज है, कलाम तो चुपान है, कलाम तो चिराग है, कलाम तो संभाल लेता है, कलाम तो जान फूंक देता है, कलाम तो खड़ा कर देता है, कलाम तो हम गिरे हो तो हमें सहारा दे देता है, कलाम तो हमारे पास कुछ ना हो तो मुहैया कर देता है, कलाम तो कुदरत है। लेकिन खुदाम के लिए कलाम पेट है, वो कलाम ऐसा सुनाते हैं कि हमें मुहैया किया जाए। लेकिन याद रखिएगा, खुदा ने जब आपको बरकत देनी है तो वो आपके दिलों को खुद तैयार कर लेता है। आमीन। मेरा काम है